Please let me know whether you are whether it is visible or not. Yes, is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now this is the third time I am teaching to your class, and it is very nice experience every time while teaching to your class. You all are very sincere students. Okay, and now you are in 8th semester. So this is the elective subject. Okay, elective third elective. Hmm? So this is your satellite communication, and as actually, do you know this subject code? How to read this code? I already told you, na, when I taught you digital communication, how to read it. Yes, girls. Are you getting me? आवाज आ रही है ना आपको? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. नहीं पता तो आप नहीं बोलो ना कि नहीं पता करके. बट मैंने ये बताया था आपको कि कैसे रीड करते हैं इसको. आपको ये आना चाहिए. Yes, ma'am. आपने बताया. आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि ये क्या है मैम, ये कोड कैसे क्यों लिखा आपने. आप पीपीटी में या नोट्स में हर एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, है ना. तो ये आपको इट शुड बी अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि ये क्या है. Even though I explained you, but no worries, I will explain it again. See, BE. Okay, this is you are doing your graduation, bachelor's of engineering. That's why it is BE. Okay, then ETE means your branch, electronics and telecommunication. Okay, now this is what does it mean? This eight means eight semester. Yes, right. And this 05 means? Ma'am, fifth subject. Yes, very good. This is the fifth number of subject. And T is for theory. Okay. And this subject doesn't have practical. If it have practical, then it must be a P. P for practical. Okay. Then likewise, all the subjects or all the courses are having their own subject code. Depending on the semester, these first letters are common for all the semesters, but this is different because it depends on your semester and the subject sequence. कौन सी sequence में subject आता है, it depends on that. Okay. Okay, now let us discuss on the syllabus of the satellite communication. First of all, let me tell you that the satellite communication subject is very interesting subject and very scoring subject as well. You can score very good marks. You can score out of marks in satellite communication, so that your percentile will enhance because of this subject. If you prepared it well, then and it is very interesting. Okay, आपको इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप खुद होके उसको प्रिपेयर करोगे, या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बिकॉज इट कवर्स द सैटेलाइट. ओके, हाउ वी आर डूइंग द कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट. Okay, what is the meaning of this satellite communication? This satellite communication, before this 8th semester you have already studied different communication subjects. Okay, which were those subjects you were studied
Yes, anyone? Optical communication. Yes, you have studied optical communication. Then Communication system. communication electronics, not systems. You have studied in 5th semester. Then मैंने भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया है. कौन सा था वो? DCOM. Yes, डिजिटल कम्युनिकेशन. और हो गया, इतना ही है. In this semester, you are having one more communication subject, that is mobile communication. So see, Yes, ma'am. when I'm talking about communication electronics, then it means that in communication electronics, you have studied the communication through analog signals. Okay, you have studied all the different modulation techniques which required for that communication, like amplitude modulation, frequency modulation, okay, phase modulation. These are the analog modulation techniques by means that communication will happen, right? Now in digital communication, as the name itself indicates, that digital communication, it means that the communication will happen due to the digital data bits. Digital means bits, 1 and 0. Okay, it is the way of communication through bits. तो कम्युनिकेट जो सिग्नल होगा, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में कौन सा कम्युनिकेशन होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन बीट्स के फॉर्म में. बीट्स के फॉर्म में मीन्स 1 and 0 के फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलेंगे हम डिजिटल कम्युनिकेशन. Again, for digital communication, there were so many modulation techniques. Which were those? Can you recall? Yes? Are you able to recall that modulation techniques which were used for digital communication? Aishwarya? CM. Pulse width modulation, amplitude modulation. Ma'am, No. frequency modulation. Frequency? Modulation. Division, multiplexing. No. Amplitude modulation, frequency modulation, these are the analog techniques, na? Why it is called as analog techniques? Because of analog signal are being transmitted using this modulation. Okay? जो हम एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं? मैम, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की. यस, वेरी गुड. फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की. यस, वेरी गुड. एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, और देर आर सो मेनी. मैम, फेज ऑल्सो. यस, फेस शिफ्ट कीइंग, दैट इज पीएसके, और उसको बीपीएसके भी बोलते हैं, बाइनरी फेस शिफ्ट कीइंग, है ना? और एएसके, पीएसके, एफएसके. तो डू यू रिमेम्बर व्हाट हैपन इन एएसके? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होता था? व्हेन देयर इज अ बिट 1, देन अगेन सी, कोई भी मॉड्यूलेशन के लिए हमें 2 सिग्नल्स लगते हैं. विच वेर 2 सिग्नल्स? कौन से 2 सिग्नल्स हमें लगते हैं मॉड्यूलेशन करने के लिए? कैरियर एंड मैसेज सिग्नल. यस, वेरी गुड. मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, राइट? तो जो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, तो उसमें दोनों सिग्नल्स एनालॉग रहते हैं. अब डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? डिजिटल कम्युनिकेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है? इन डिजिटल मॉड्यूलेशन, मैम, बीट्स. यस, इट इज इन Zero. बिट्स, 1 and 0, स्क्वायर वेव, है ना? स्क्वायर वेव आपने देखा था 1010 के फॉर्म में, राइट? When there is a bit 1, then we are having 5 volt. When there is a bit 0, then we are having 0 volt. तो ऐसे स्क्वायर वेव रहती है मैसेज सिग्नल की. ओके, एंड फॉर कैरियर, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इज यूज्ड फॉर कैरियर. विच सिग्नल? in digital communication?
Don't get confused, huh? In digital communication, the carrier signal is analog, high frequency signal. ओके, तो ASK में क्या होता है? ASK का दूसरा नाम है ऑन ऑफ किंग. ओके, व्हेन देयर इज अ 1 देन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, व्हेन देयर इज अ 0 नो सिग्नल इज ट्रांसमिटेड. ऑन एंड ऑफ, इट्स लाइक अ स्विच. आपको आ रहा है क्या समझ में मैं जो बता रही हूं आपको? Yes, ma'am. है ना? Yes, तो ma'am. लाइकवाइज ASK हो गया, देन BPSK हो गया. तो BPSK में बाइनरी फेज शिफ्ट किंग में क्या होता है कि आपका जो फेज है, किसका फेज है? कैरियर सिग्नल का फेज. तो कैरियर सिग्नल का फेज 180 डिग्री से चेंज होता है. कब चेंज होता है? when bit is changed from 1 to 0. when there is a change from 1 to 0, then what happened? The phase of carrier signal will change from 0 to 180 डिग्रीज, यानी फेज शिफ्ट मिलता है वहां पे. ये सारा कुछ पढ़ाया है 6 सेमिस्टर में आपको. अभी आप लोग रिकॉल कर सकते हो, है ना? रिकॉल हो रहा है ना सभी को? ओके, तो लाइक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग. तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में क्या होता है? इट्स अ ब्यूटी ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग दैट इन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग वी कैन ट्रांसमिट 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, है ना? तो एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो रहेगा हमारा, दैट इज योर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और सेकेंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल बी अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना? तो at a time only one frequency signal can be transmitted. Okay, means when there is a 1 then high frequency signal will transmit, and when there is a 0 then low frequency signal will transmit. Okay, this is happen in frequency shift keying. Okay, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट योर डिजिटल कम्युनिकेशन. तो यहाँ जहां पे ट्रांसमीटर की बात हम करते हैं तो वहां पे रिसीवर तो होता ही है. इन एनी कम्युनिकेशन सिस्टम देर इज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ओके, मीन्स हम जहां से सिग्नल सेंड करते हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांसमीटर, और हम जहां पे सिग्नल रिसीव करते हैं, ओके, और उसको डिकोड करते हैं, दैट इज योर रिसीवर. ओके, तो दिस इज अबाउट योर कम्युनिकेशन ऑन ब्रॉड पर्सपेक्टिव. तो कम्युनिकेशन के लिए हमें जो इसेंशियल जो ब्लॉक्स है या इसेंशियल जो चीजें हैं, तो वो कौन कौन सी इसेंशियल नीड्स है हमारी? एक तो है हमारा ट्रांसमीटर, दूसरा है हमारा रिसीवर, और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? डू यू रिमेंबर दैट? In any communication system, this device plays a very, very important role. Which was that? Yes, students? Yes, ma'am. Yes, yes. Which is that? याद आ रहा है? You had a subject in 5th semester on that, the complete subject. Now I have given you a hint. अभी याद आ रहा है कुछ? Antenna. In any communication system, antenna plays a very, very important role. Without antenna, the communication system can't survive, है ना? अगर मेरे पास सिग्नल है, मैंने उसको मॉड्यूलेट भी किया है, बट इफ आई डोंट हैव एंटीना देन हाउ कुड आई ट्रांसमिट इट? नाउ you are having one device with you all the time without which you can't survive. What is that device? Mobile. Mobile, yes. Now let me on my camera to show you where the antennas are placed in mobile. Okay, now you tell me, do you know where antennas are placed in your mobile? मैम जहाँ पे वो होल दिखता है हमें. होल दिखता है वहां पे? नहीं, वो साइड पे रहता है.
Okay, now are you able to see me? Yes, ma'am. Okay, now this is my mobile. हम्म, ठीक है। अब आप लोगों को याद होगा जब आप छोटे थे, या आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन हमारे वक्त, हम जब छोटे थे तब ऐसा एक डब्बा साइज, एक इतना छोटा सा ऐसे इतना मोबाइल आता था। अभी मोबाइल के साइजेस ऐसे हैं, लेकिन पहले ऐसे इतना इतना साइज का मोबाइल आता था। ओके, और उसको एंटीना कहाँ पे रहता था? यहाँ पे। हम्म, अभी ये स्लिम मोबाइल है आपके, तब ऐसे मोटे मोबाइल्स आते थे, है ना, डब्बे जैसे। तो एंटीना यानी यहाँ पे एक ऐसे डंडी रहती थी, एरियल। तो वो एंटीना कौन सा रहता था आपका? एरियल एंटीना, वायर्ड एंटीना रहता था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ योर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इवेंट आने के बाद जो रिसर्चर्स है उन्होंने एंटीना को इन्वेंट किया, ठीक है। तो वो एंटीनाज है आपके, कौन से एंटीनाज है? ऑन बोर्ड एंटीनाज और माइक्रोस्ट्रिप एंटीनाज। ओके, तो माइक्रोस्ट्रिप, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोस्ट्रिप एंटीनाज व्हाट हैपेन, द साइज ऑफ योर एंटीना इज वेरी कॉम्पैक्ट। एंटीना का जो सॉरी साइज ऑफ योर मोबाइल इज वेरी कॉम्पैक्ट बिकॉज ऑफ योर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड योर माइक्रोस्ट्रिप एंटीनास, है ना। तो ये जो मोबाइल है इसमें कितने एंटीनास रहते हैं? ऑन चिप एंटीनास कितने एंटीनास रहते होंगे? डू यू नो? कैन यू गेस? Can you guess how many antennas are there in your handset which you are carrying whole day and night? रात में आपके बाजू में ही मोबाइल रहता है, आप उसके बिना सो ही नहीं सकते हो, है ना। कितने लोग मोबाइल लेके सोते हैं रात को? मैम मोर देन 4-5। यस, करेक्ट। देर आर टोटल 6 एंटीनास। कितने एंटीनास रहते हैं? 6 एंटीनास। ओके, अब इसमें क्या होता है पता है क्या? बाकी की जो सर्किटरी है, तो वो पहले एंटीना का जो मैन्युफैक्चरिंग टीम जो है, मैन्युफैक्चरिंग टीम और डिजाइन टीम जो है, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वाली जो टीम है, वो क्या करते हैं? पहले पूरा एंटीना का ये सॉरी पूरा हैंडसेट का पूरा यहाँ पे डिजाइनिंग हो जाता है, यहाँ पे बैटरी पोर्शन छोड़ के, ठीक है। देन इट गोज टू योर एंटीना डिजाइन टीम। फिर एंटीना डिजाइन वाली जो एक्सपर्ट टीम रहती है वो क्या करती है कि यहाँ पे जितना भी स्पेस बचा है, जितना भी स्पेस रिमेनिंग है, तो वो स्पेस में उनको बहुत कम स्पेस मिलती है, तो वो स्पेस में वो एंटीना डिजाइन करते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या रहते हैं उनको? स्पेस कंस्ट्रेंट। बट इवन दो दे डिजाइन एंटीना इन वेरी वेल मैनर्ड, ओके, तो यहाँ पे जो स्पेस रहती है, तो योर एंटीनाज आर इनबिल्ट हियर, यहाँ दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर साइड्स में एंटीनाज रहते हैं, एंड दिस साइड, ये साइड्स में रहते हैं आपके एंटीनास। ओके, तो वो एंटीनास को हम बोलते हैं प्रिंटेड बोर्ड एंटीनास, है ना, प्रिंटेड बोर्ड एंटीनास। तो कौन सी शीट यूज होती है, कौन सा मटेरियल और कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है एंटीना डिजाइन के लिए? दिस कैन बी योर एमसीक्यूज इन योर गेट एग्जामिनेशन, है ना। एंटीना पे हमने लास्ट सेमिस्टर भी ये किया था ना, कौन से क्लासेस थे वो? टीसीआरटी के क्लासेस थे, है ना। तो एंटीना का हमारा जो लास्ट सेमिस्टर में क्लासेस थे, तो मैंने एंटीना के प्रॉब्लम्स मैम दिए थे उसमें, कॉपर। है ना। कॉपर नो, प्रिंटेड सर्किट में कॉपर यूज नहीं होता है। Here I am talking about this हैंडसेट, है ना, मोबाइल में जो एंटीनाज है, इसके लिए जो आपका जो पीसीबी है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स,
है ना। तो पीसीबी जो है ना वैसा ही एंटीना का जो सबस्ट्रेट है वैसे ही दिखता है, पीसीबी जैसा ही रहता है वो, है ना। तो हम यूजिंग योर एंटीना डिजाइन सॉफ्टवेयर वी डिजाइन एंटीना एंड देन वी फैब्रिकेट दैट एंटीना ऑन दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट रहता है FR4 सबस्ट्रेट। FR4 सबस्ट्रेट इज मोस्टली यूज बिकॉज दिस सबस्ट्रेट इज वेरी चीप। तो बाकी के जो सबस्ट्रेट है आरटी ड्यूरॉइड एंड ऑल दी सबस्ट्रेट आर वेरी कॉस्टली। तो रिसर्चर्स आर यूज्ड दी सबस्ट्रेट फॉर देयर रिसर्च वर्क, ओके, बट फॉर कमर्शियल यूज FR4 सबस्ट्रेट इज मोस्टली यूज्ड, ओके। तो FR4 सबस्ट्रेट पे आपका अगर एंटीना सॉरी आपका अगर मोबाइल किसी का खराब मोबाइल आपके घर में होंगे जो कि ब्रेक हो चुके हैं, कुछ काम के नहीं है ना, तो वो मोबाइल को थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके देखो, है ना। तो आपको दिखेगा कि ये जो साइड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके एंटीनाज रहते हैं, ओके। तो हाउ मेनी एंटीनाज आर देयर इन वन हैंडसेट, इन वन मोबाइल? देयर आर टोटल 6 एंटीनाज। व्हाई दीज 6 एंटीनाज आर रिक्वायर्ड? 6 एंटीनाज क्यों लगते हैं? Yes, anybody? ऐश्वर्या? एंटीना का क्या क्या वर्क है बताओ ना, क्या करता है एंटीना? मैम फ्रीक्वेंसी कैच करता है। हाँ वो तो है, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर हैंडसेट, है ना। तो ये हैंडसेट में जो अलग अलग मोबाइल एंटीनाज है तो उनका क्या फंक्शन होता होगा? हम्म डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करना। ओके, दिस इज बियॉन्ड सिलेबस टॉपिक, ये मोबाइल वाला जो है वो। तो आई विल कवर दिस टॉपिक इन एनी TCRT क्लास, कि एंटीना मोबाइल में 6 एंटीनाज है तो हर एक एंटीना का क्या पर्पस है, ओके। तो लेट मी कवर माय सिलेबस फर्स्ट, है ना। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं सैटकॉम का। तो प्लीज मुझे जब भी TCRT का हमारा ये वीक में क्लास होगा तो लेट मी रिमाइंड, मुझे रिमाइंड कर देना, ये टॉपिक में कवर करूंगी। यस मैम। नाउ हाँ ओके, लेट अस मूव टुवर्ड योर यूनिट नंबर 1। तो इन यूनिट नंबर 1 यू विल बी स्टडिंग द इंट्रोडक्शन, मीन्स ओरिजिन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ओके। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ओके। नाउ आई वाज टेलिंग अबाउट यू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, द नेम सैटेलाइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सैटेलाइट? तो this communication is happened because of the satellite, this communication is happened because of the satellite, or through satellite this communication will happen. That's why the name is satellite communications. Satellite is the Latin word, and from this word this satellite comes, है ना। तो लैटिन वर्ड एक सैटेलाइट करके वर्ड है, तो उससे सैटेलाइट वर्ड आया है। So we will discuss it in brief when we'll start our actual syllabus. What is the satellite communication means? There should be 2 base stations on Earth, and there is one satellite, and then through that satellite the base station will communicate with each other. Okay, then we'll study the current state of satellite communication. Then orbital aspects of satellite communication. Now do you know where is satellite? Satellite कहाँ पे रहता है, आपको पता है? कहाँ पे रहता है satellite? मैम स्पेस। Yes, very good. Satellite are placed in space, है ना। और
स्पेस में कहाँ रहते हैं? ये पीपीटी में वर्ड दिया हुआ है, स्पेस में कहाँ रहते हैं? स्पेस में रहते हैं वो ऑर्बिट में। कहाँ रहते हैं? ऑर्बिट। दे रिवॉल्व इन ऑर्बिट। सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो कहाँ रिवॉल्व करते हैं वो? अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्बिटल एस्पेक्ट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑर्बिटल मैकेनिज्म, and then this is very very important, the equation of orbit. There is one derivation on this, you will be going to study that derivation. Okay, so then after that, locating satellite in orbit. How to locate satellite in orbit? When the launching of satellite will happen, then what happened? Before the launching of satellite, they should know, the ISRO person or whoever is going to launch satellite in orbit, they should know in which orbit the satellite will go and revolve. ओके, तो उसके लिए लोकेशन और लोकेट करने के लिए इसका भी एक डेरिवेशन है। तो यहाँ पे भी डेरिवेशंस है, तो दे शुड नो ईच एंड एवरी टर्म, और उसके जो कैलकुलेशंस है दे हैव टू डू द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, उनको अल्टीट्यूड पता रहना चाहिए, देन दे शुड नो द डिस्टेंस, ओके, दे शुड नो द एंगल, they should know the perigee, apogee. Okay, so all these values should be calculated before the launching of satellite into the orbit. Okay, so this part you will be going to study in locating satellite in orbit. Okay, then next topic is your orbital elements. Okay, there are 6 orbital elements which you will be going to study in this particular unit number 1. एंड ऑर्बिटल पर्टर्बेशन। तो ऑर्बिटल पर्टर्बेशन क्या है वो भी आप लोग पढ़ने वाले हो इसमें। देन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट topic, that is spacecraft subsystem, this attitude and orbit control system. This plays a very important role in satellite communication, as well as this telemetry tracking and command power system you will be going to study. And then the communication subsystem. What are the communication subsystems are there, you will going to study in unit number 1. Okay, now see here I have prepared this PPT along with the reference books. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप कौन सा बुक रेफर करना है आपको, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फॉर यूनिट नंबर 1 you have to refer this book, because this book is very very good, satellite communication by T. Pratt. Okay, and this is Ville and Sons publication. So this book is available in library. I think ebook is also available now. If anytime you can come to college in library and you can issue this book. Then unit number 2. So in unit number 2 you are going to study the satellite link design. Yes, this is again very very important topic in satellite communication, how to design the link of satellite. तो लिंक डिजाइन क्या है, देन व्हाट इज नॉइज टेम्परेचर, व्हाट इज G2T टेम्परेचर, ओके, देन व्हाट इज अपलिंक, व्हाट इज डाउनलिंक, यू आर गोइंग टू स्टडी. Then what is domestic satellite system using small earth station. इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम. और इसका एप्लीकेशन क्या है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट टीवी. आपका जो ब्रॉडकास्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो सैटेलाइट यूज्ड होता है ना, तो वो सैटेलाइट कौन से रहते हैं, डोमेस्टिक सैटेलाइट्स रहते हैं. तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं. These satellites are always in low earth orbit. Okay, then you will be studying uplink design along with design of satellite link for specified C to N ratio. This is again very very important topic. And again the reference book is T. Pratt for this unit as well.
Okay. Now come to unit number 3. Okay. Now few topics from of these units are already covered in digital communication. Okay, this TDMA, I think this is covered. But even though I will take all the topics, multiple access techniques. Okay, you are going to study the multiple access techniques. Which are those techniques? FDMA, FDM or FDMA is same. Uh, then TDMA. TDMA is again the multiple access technique. Then TDMA synchronization and timing. Yes, this topic is very very important, and one question is always asked on this topic. If you will be having your mm, subjective exam, then this the question is usually asked, short note is usually asked in TDMA synchronization and timing. Then code division multiple access, that is CDMA. Then SS means spread spectrum transmission and reception. What is that you are going to study here? Then applicability of CDMA to commercial systems. Multiple access on board processing, SCPS system. Yes, again a short note is asked on this topic, CDMA, FDMA and all. Digital speech interpolation system you are going to study, and DAMA is again multiple access technique, one of the multiple access technique you are going to study in unit number 3. Okay, see, when this when the syllabus of this satellite communication was designed in the year of 2015. Okay, then I was heading that team of that satellite communication syllabus making system. Okay, so this syllabus is designed accordingly. Right, so there was a team who were designing this syllabus. Uh, i was uh, i was in that team as a head of that team. And now I think means I'm trying to write a book on this satellite communication, a textbook, so that the complete portion of complete syllabus of this RTMNU cover in that book. Okay, because what happened, this subject is having total 6 units. And few units don't contain in that book, है ना? कुछ जो यूनिट्स है वो टी प्रैट के बुक में नहीं है. और द लैंग्वेज इज ऑल्सो टफ, बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल एडिशन. ओके, तो इंटरनेशनल एडिशन होने की वजह से द लैंग्वेज इज फॉरेन ऑथर है ना ये, तो थोड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है. तो माय नोट्स आर वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो मैंने खुद के ओन वर्ड्स में मेरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं. फ्रॉम सिंस 2015 आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट. तो सो हियर आई एम थिंकिंग टू राइट अ बुक ऑन दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बट अभी तो नहीं होगा वो, इट विल टेक अ टाइम. ठीक है. Then your unit number 4. Then unit number 4 comprises your propagation on satellite. Then earth path, प्रोपोगेशन इफेक्ट्स की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे क्या अफेक्ट होता है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना? आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बारिश आ रही है, बहुत जोरों की बारिश आ रही है ना, एकदम धुआंधार जब बारिश आती है, तब आप मस्त एक कोई मूवी देख रहे हो, सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो और बहुत जोर से बारिश आ रही है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आर यू एबल टू सी द मूवी? नो मैम. मीनिंग, यस. तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? आपको कुछ याद आ रहा होगा? मैम नो सिग्नल. यस, वहां पे लिख के आता है नो सिग्नल, है ना? अभी देखो सभी के यहाँ स्मार्ट टीवीज है, डब्बा टीवी किसी के यहाँ नहीं है, सभी के यहाँ स्मार्ट टीवी है ना? आपके यहाँ पे जो केबल है, तो आपके यहाँ जो आता है ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ वो सोनी केबल के थ्रू होता होगा या फिर डिश लगा होगा ऊपर, है ना? तो कितने Yes, लोगों के यहाँ ma'am. डिश है? मैम मेरे यहाँ. ऐश्वर्या, तो आप अभी आज जाके ऊपर जाके देखना डिश,
वो क्या है एक्चुअली? डिश क्या है? आप डिश को दूसरा नाम भी क्या है? Satellite. Antenna. एंटेना। हाँ, इट्स अ Ma'am, antenna. यस, इट्स अ डिश एंटीना, नॉट सैटेलाइट। अभी घर में सैटेलाइट रहेंगे क्या बेटा? सैटेलाइट तो ऊपर है। Ma'am, गलती से. नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो ये डिश एंटीना क्या करता है? सिग्नल को कैप्चर करता है। क्या करता है? सिग्नल को कैप्चर करता है। और कौन से सिग्नल को कैप्चर करता है? जो कि सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? सैटेलाइट के थ्रू आ रहे हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है आपका, कौन सा सैटेलाइट है? अभी हमने नाम देखा था, कौन सा सैटेलाइट है? ऑर्बिटर। नो 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 नो, अभी इसके पहले विच वॉज दैट? ये देखो यहाँ पे, डोमेस्टिक सैटेलाइट सिस्टम फॉर डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट टीवी। हाँ, तो ये कौन सा सैटेलाइट है? डोमेस्टिक सैटेलाइट। तो और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इसको डोमेस्टिक या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आजकल यूज होते हैं। तो ये सैटेलाइट से सिग्नल कहाँ आते हैं? आपके डिश एंटीना, यानी वो सिग्नल सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर डिश एंटीना? टू कैप्चर ऑल द सिग्नल विच आर कमिंग फ्रॉम द सैटेलाइट, और वो सिग्नल आपके टीवी में आते हैं, है ना? तो फिर बीच में अभी एक आया था, क्या आया था? जब आपका स्मार्ट टीवी आया था तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि वो आपको सेट टॉप बॉक्स लेना ही है। अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू वॉच एनीथिंग ऑन योर टीवी। आया था कुछ साल पहले ऐसा सेट टॉप बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट, Yes, ma'am. याद है किसी को? यस। तो व्हाट इज दैट सेट टॉप बॉक्स? डू यू नो? आपके घर में, सभी के घर में सेट टॉप बॉक्स है। तो आपको पता है क्या कि वो सेट टॉप बॉक्स आपने क्यों लगाया है? जो आपको इंसिस्ट कर रहे थे कि सेट टॉप बॉक्स लेना ही है, उसके बगैर आप टीवी नहीं देख सकते हो, तो आपने किसी किसी ने आप उनसे पूछा क्या कि क्या काम है ये सेट टॉप बॉक्स का, क्यों लगाए हम, क्यों हम नहीं देख सकते इसके बगैर? तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ? हम्म, ठीक है, तब नहीं हुआ, तब आप छोटे थे। अब आप देखो कि वो सेट टॉप बॉक्स का क्या क्या काम है, क्यों लगाया है वो सेट टॉप बॉक्स? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? कैन यू नो? दिस इज योर सेकेंड, ये सेकेंड नहीं, हाँ, मैंने फर्स्ट वाला जो आपको बताया था वो था कि अपने मोबाइल पे जो एंटीनास है उसके क्या फंक्शंस है, 6 एंटीनास के। दैट इज योर फर्स्ट होम असाइनमेंट, यानी कुछ लिखना नहीं है, जस्ट यू हैव टू मीन्स गैदर द इंफॉर्मेशन एंड देन विल डिस्कस इन टीसीआरटी क्लास। एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? कि सेटअप बॉक्स क्या है, व्हाट इज सेटअप बॉक्स? ठीक है, याद रहेगा ये दो? ठीक है, दिस टीसीआरटी क्लास, इन टीसीआरटी क्लास विल डिस्कस दिस कि सेटअप बॉक्स क्यों लगाते हैं, क्या काम है उसका, लाइक ओके। देन या दिस प्रोपोगेशन इफेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी, यस। तो बहुत जोर की जब बारिश होती है तो टीवी पे लिख के आता है कि नो सिग्नल। तो वो क्यों लिख के आता है नो सिग्नल? क्योंकि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन, वो बारिश की वजह से क्या हो रहा है कि रेन एंड आइस इफेक्ट भी है ये, तो ये आता है रेन इफेक्ट के अंदर। तो बिकॉज ऑफ रेनिंग, हेवी रेनिंग, तो वो क्या होता है, आपका जो सैटेलाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आ रहा है, तो वो एब्सॉर्ब कर लेता है। कौन एब्सॉर्ब करता है? वाटर। वाटर इज absorbing that signals, satellite signal, okay? And that's why you are not able to watch on your tv. but ये कौन से केस में होता है? जिनके यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स, सॉरी, जिनके यहाँ पे वो डिश एंटीना लगा हुआ है, ओके। अब आप में से ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके घर में सोनी केबल से आता है, सोनी केबल, एक केबल लगा हुआ है ना? कितने लोगों के यहाँ डिश नहीं है, केबल के थ्रू आता है सिग्नल? यस।
आई थिंक टाइम हो गया, इसलिए आप लोग शांत हो गए क्या सब लोग? तो वेनेवर सिग्नल इज कमिंग थ्रू केबल, तो थ्रू केबल आ रहा है तो वहां पे रेन इफेक्ट, बाकी का कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कुछ है ही नहीं ना, क्या इफेक्ट रहेगा? क्योंकि वो पूरा वो जो सिग्नल है वो थ्रू केबल आ रहा है ना, और वो केबल पूरा अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, रैप्ड रहता है वो, है ना। तो देर इज नो सच इफेक्ट इन केस ऑफ केबल कम्युनिकेशन थ्रू केबल. But in dish antenna, there is a effect, or there is a problem for this signal, satellite signals. Okay, now I think it's 11:17. I must stop here because you are having your break, and I don't want to take your break. Okay. Okay, girls. So we'll continue this discussion in tomorrow's lecture. Girls, am I audible? Please give your attendance. Yes, ma'am. Ma'am, roll number 2. एक minute. Please give your attendance in a serial manner so that I will be having your roll numbers in sequence. Okay. Now you are able to see your friends. Though tell me from 1 to 17, like 1 to 17 में जितने भी students हैं Ma'am, 1 जिन्होंने, absent. yes, Ma'am, 2 Aishwarya present. is number 2, yes. Roll Please number tell me in 6. sequence. Roll number 6. Yes, Okay. roll number 10. ओके, 6 और 10 के बीच में कुछ कोई नहीं है? ओके, देन Number 11. रोल नंबर 11, Ma'am, roll number 12. 12, Roll number 13, yes. Roll number Ma'am, 14, 14 and 15 also ना? 15 and 17. 15 and 17 कौन है? 17? Sir, ma'am, Ma'am, 15 Vinita. to 17. Okay, Vinita is 17 and 15 is Vaibhavi ना? Right? तो I am having 1, 2, 3, Yes, 4, ma'am. 5, 6, 7, 8, 9 students, और यहाँ पे कितने हैं? 16 हाँ, all. बराबर, करेक्ट, करेक्ट. ठीक है. रोल नंबर 16 is present? No, ma'am, Varda is absent. No, ma'am. हाँ, okay. Then I'm having, oh yeah, I'm having your roll numbers. Okay, then girls, we'll meet tomorrow. Then bye.